Ladies and gentlemen, let us have our discussion on population. Population in Pakistan, population in the region, and population in the world. So we have to make a three-pronged policy towards preparing this topic. Three-pronged approach. Please write a comment that I will adopt three-pronged approach to cover the population topic, Pakistan, region, and the world. Three-pronged. Whenever you are writing, you must differentiate these three prongs, these three branches, three dimensions. Otherwise, your topic that will be not complete and examiner will not give you marks. Basically, this is marks game. We have to get marks and marks. Without marks, you cannot get success. And for marks, you have to make great strategy. So here the strategy is three-pronged strategy, three-pronged approach, Pakistan, region, and globe. This will give you a systematic way to proceed while writing your topic. So please write the comment. I will adopt three-pronged approach to cover the population topic, Pakistan, region, and the world. Now, if you have this point in your mind, so your writing will be very systematic. You will talk about Pakistan, you will talk about the region, and then you will talk about the whole world. And examiner will be happy with you. Otherwise, if you write hodgepodge, mix kind of thing, so examiner doesn't like this hodgepodge kind of thing. System is always appreciated. System is very, very important. Thank you for sharing the link. If I'm audible and visible, so please write the like the video broadcast, and I see some of the comments now. So I will adopt the three-pronged approach to cover the population, Pakistan, region, and globe. Actually, this formula is applicable everywhere, almost everywhere. Pakistan, region, and globe. Specifically, our today's topic, which is population. I have given you some 6-7 important sources. 6 I think today and 3 yesterday. So there are some around 9-11 sources. As today I gave you another formula, and that formula is VSB, various sources bridging. This is an interesting methodology to study. Interesting, because when you are preparing one topic from one source, so that is tedious, that is boring. But when you consult many sources and when you bridge those sources, that is a huge excitement, huge energy that you receive. So VSB, various sources bridging, but you have to bridge them. Do not study various sources separately. You have to bridge. Bridging is important. Otherwise, having 5 books on the same topic, that is not the solution. Solution is bridging them. And when you bridge, automatically you are making your notes. Automatically you are developing your understanding. The point is bridging. Bridging is basically making notes. Because when you make notes, that is supporting your memory. Supporting your memory. Why we make notes? Because we want to support our memory. If everything we can absorb quickly, automatically, so why we make notes? Basically, making notes is support of your memory. Bridging various sources is another way of making your notes. And as Amara Mukhtar wrote, connecting dots is the hallmark of creativity. Just reading dots, going in linear position, linear, straight. This is not creativity, because there is already a way and you are just walking. But when you make your own way, that is creativity.
more than enough. Safe articles are more than enough. If you really study them and you bridge the sources, so that is more than enough. One textbook always I recommend, because textbook is a kind of solid thing in your hand. These sources are really interesting, but it is for highly creative people. Common average kind of people should have textbooks also, because textbooks is linear arborescent learning. टेक्स्ट जो है अभी स्कैंडिनेविया में, फिनलैंड में उन्होंने टेक्स्ट बुक ख़त्म किए, टॉपिक वाइज वो स्टडी करते हैं। अब मतलब अब उनके साइंस में, उनके स्कूल में कोई साइंस की किताब नहीं है। फिनलैंड में ख़ास तौर पर वहाँ टेक्स्ट बुक उन्होंने एबॉलिश कर दिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है आपको लिमिट कर देता है। तो उन्होंने टेक्स्ट बुक एबॉलिश की, टॉपिक वाइज स्टडी उन्होंने शुरू कराया। वो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं जी बैक्टीरिया, हमारा टॉपिक क्या है, बैक्टीरिया, पढ़ो बैक्टीरिया पे, जहां से भी पढ़ना है, ठीक है, जहां से भी बैक्टीरिया पे पढ़ना है, गूगल से पढ़ो, ब्रिटानिका से पढ़ो, विकिपीडिया से पढ़ो, जहां से भी पढ़ना है, वेरियस सोर्सेज से पढ़ो और बैक्टीरिया को समझो कि बैक्टीरिया क्या है। वो लगी पट्टी बैक्टीरिया का पैराग्राफ, डायग्राम, ये वो कहानी अब क्रिएटिविटी की दुनिया में नहीं है। लेकिन एक सॉलिड आपको रॉक चाहिए, तो सॉलिड रॉक जो है वो आपका टेक्स्ट बुक है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज पॉपुलेशन, 3-pronged approach, and before I continue this lecture, I would like to see your writing first, and that is important that we have to see how we are going in the right direction, which is VSB, world population, global warming, human rights. Yes, that is at very major level. एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए, वरना फिर आपसे कंट्रोल नहीं होगा। ये बहुत कम दिल गुर्दी वाले लोगों का काम है कि वो फिर कंट्रोल भी कर सके। मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम होता है एग्जामिनेशन में कि मैं आखिरी 1-2 क्वेश्चन पूरा नहीं लिख सकता, इतना नॉलेज होता है कि मैं क्या करूँ उसका। तो वो एक और कहानी है कि फिर बंदा इतना भी वेरियस सोर्सेज में न जाए कि उधर ही गुम हो जाए, वापस आ ही ना। जंगल में बेशक जाए, जंगल में अपना रास्ता बनाए, लेकिन जंगल में गुम नहीं होना, वापस भी आना है। सो प्लीज राइट अ पैराग्राफ. What is your understanding of population problem, Pakistan, region and the world? I am giving you 5 minutes. Write on the topic. पॉपुलेशन में आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, इसी तरह का प्रेशर है, टाइम लिमिटेड है, तो आपने क्या लिखना है, उधर क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्लीज यूज योर मेमोरी, राइम, रैशनल, सिर्फ माइंड को यूज करिए, सेंसेस को नहीं, कहीं से कॉपी पेस्ट यूज ना करें। गलत हो ठीक हो जो भी है, माइंड से निकालो, इधर लिखो। पॉपुलेशन पे आपको क्या आता है? Hurry up, 5 minutes. Write some beautiful thing, introduce, explain,
recommend, conclude. सो लेट अस सी योर कारनामे, क्या कारनामे आप लोगों ने किए हैं। प्लीज सबमिट योर पैराग्राफ्स on population. Hurry up. I don't see any comments so far, so time is already over. Hassan Majid, the population is one of the main issue. The population की कोई जरूरत नहीं, द मत लिखो, population से start करो. Population is one of the main issues in contemporary world.
अब इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन नहीं है, मैंने अभी आपको सेफ फाइव में बताया इंक्रीमेंट जो है वो नाउन है, इंक्रीज जो है वो वर्ब है। अगर आपने इंक्रीजिंग ही लिखना है तो ठीक है, लेकिन आई को कैपिटल करो, इंक्रीज लिखो, फिर इंक्रीजिंग गलत है, इंक्रीज। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज आल्सो डिक्रीजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज विच इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द अपकमिंग जनरेशन। अब एक जनरेशन तो नहीं है ना, अपकमिंग जनरेशंस। लॉजिक फैक्चुअल चीज लिखा करो। टेम्परेचर, रिजल्ट, गुड फैमिली प्लानिंग। गुड का वो एडजेक्टिव कभी यूज नहीं किया करें। थॉटफुल, इंटेलिजेंट, वेल प्लान्ड फैमिली प्लानिंग। गुड को बिल्कुल खत्म करें अपने वोकैबुलरी से। गुड की जगह कोई और सिनोनिम यूज किया करें, क्योंकि गुड और इट और ये जो चीज होती है, थिंग भी कभी नहीं लिखा करे, THING। नो थिंग नो गुड फॉर आवर अपकमिंग जनरेशंस। शाकिर जैदी, पॉपुलेशन मीन्स द सम ऑफ पीपल लिविंग इन एनी कंट्री। अभी गलत डिफिनेशन है ना, क्या अगर आपको खामखा डिफाइन करना है पॉपुलेशन को, कुछ चीजों की पॉपुलेशन जो है उसके मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत आम से होते हैं, तो उसको खामखा डिफाइन न करे। अगर आपने डिफाइन करना है डेमोग्राफिक्स या स्टैटिस्टिक्स या सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में टेक्निकली, तो वो फिर और चक्कर है, क्योंकि पॉपुलेशन तो एनिमल्स का पे होता है, सिर्फ पीपल का तो नहीं होता। ह्यूमन पॉपुलेशन फिर आप लिख सकते हैं। तो खामखा जो है ना, एग्जामिनर के गुस्से को मत ललकारे, ऐसे काम न करे कि एग्जामिनर आपको गुस्सा हो जाए। हमेशा जब लिखते हैं एग्जामिनर को माइंड में लिखा करे। और बेहतरीन तरीका क्या है, एम्पैथी। अगर आप एग्जामिनर होते तो आपको किस तरह की लिखाई अच्छी लगती है? एम्पैथी, एग्जामिनर की जगह सोचो। ह्यूमन कैपिटल कैन अपलिफ्ट द कंट्रीज इकोनॉमी बाय मीनिंगफुल participation of the people. However, the drastic increase in population causes imbalance between population and resources. Those countries, अभी आपने ऊपर लिखना है ना ह्यूमन कैपिटल, लिखना बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों को देख के कभी कभी आपके हालात में मुझे रहम आ जाते कि क्या चक्कर है, कौन कौन सी चीज को आप ठीक करोगे। आपने ऊपर लिख लिया ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस। इधर आप लिख रहे हैं काजेज इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस। कौन से रिसोर्सेस? नेचुरल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। इसको एकेडमिक राइटिंग कहते हैं कि वो बिल्कुल कंप्लीट हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो। Those countries having more population always remain in existential। गलत है ना, गलत है। फजूल किस्म के जज्बाती नारे मत करे जिसको लॉजिक ना हो। चाइना जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वो कौन सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है? ये जज्बातियत, ये मजहबी जुनूनियत आप लोगों से कब निकलेगा? मतलब बहुत गलत क्लेम है ना, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। और आपने क्या लिखा? दोज कंट्रीज हैविंग मोर पॉपुलेशन ऑलवेज रिमेन इन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। बकवास है, पूरा बकवास। प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है कि लोग मर गए, बस पॉपुलेशन बढ़ गया तो लोग सारे चले गए, मर गए। इतने फजूल स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स मत दिया करें। मैंने रेहान अली को कहा कि इस तरह के अल्फाज मत लिखा करें। व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, ये बच्चा गाना लैंग्वेज है। लिख के सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान।
सब्सिक्वेंटली व्हेन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड, इस तरह कोई लैंग्वेज लिखा करे। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग क्या होता है? ये क्लीशे है, क्लीशे, CLICHE। क्लीशे का मतलब ये है कि ये स्टीरियोटाइप है, ये बहुत लिखा जा चुका है, आप मजीद इसको मत लिखे। इसका और एग्जांपल्स क्या है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी क्लीशे है, CLICHE। जो आपकी लैंग्वेज में लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसकी लैंग्वेज में होता है, एग्जामिनर उसको फारिग करता है कि बच्चा है, यह अभी तक ग्रो नहीं हो सका, ये ब्यूरोक्रेट बनने के काबिल नहीं है, हालांकि वो ग्रामर में ठीक है। When Pakistan came into being, its population was 30 million and increased rapidly to 220 million. ये मत लिखो ना इंक्रीज रैपिडली, 70 साल हो गए ना, तो इंक्रीज रैपिडली का क्या मतलब है? एक साल में ये 220 मिलियन हो गए, दरमियान में 70 साल भी गुजर गए, दरमियान में बांग्लादेश भी अलहदा हो गया। तमाम चीजों को मद्देनजर रख के लिखा करे, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज लिखा करे, पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज लिखा करे, ठीक है। when Pakistan came into being, yeah, when Pakistan was established, the population was 30 million. However, today it is 220 million, which is a huge gap, a huge jump. Overpopulation is currently a liability on government. Currently लगाने की क्या जरूरत है? क्या पहले नहीं था, अभी है? मतलब राइटिंग जो है वो आसान काम नहीं है। ओवर पॉपुलेशन इज करंटली अ लायबिलिटी, ये करंटली आपने क्यों लगाया? इसके क्या तुक बनता है? क्या 1960 में, 70s में, 80s में नहीं था? आज मसला बन गया करंटली, पहले भी तो मसला था। तो आप लिख सकते हैं ओवर पॉपुलेशन इज अ लायबिलिटी, बस करंटली लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, ऐसे अल्फाज लिखिए जिसका कोई तुक बनता हो। हमारा मुख्तार, द पॉपुलेशन क्वेश्चन इज अंडर सीरियस कंसिडरेशन ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अभी कहाँ से आपने स्टार्ट ले लिया? कोई इंट्रोड्यूस करो। पॉपुलेशन इज ए ह्यूज चैलेंज टू पाकिस्तान, रीजन एंड द वर्ल्ड, दैट्स वाई पॉलिसी मेकर्स आर टेकिंग इट सीरियसली। एकदम से स्टार्ट मत लिया करे, जंप मत ले। कोई इंट्रोडक्टरी वर्ड्स लिखा करे। ये जो फार्मूला है, इंट्रोड्यूस, एक्सप्लेन, रिकमेंड, कंक्लूड, ये हमेशा याद रखे। IERC, IERC, पहले कुछ इंट्रोडक्शन लिखा करे। इंटरेस्टिंगली डेवलप्ड वर्ल्ड आफ्टर हैविंग लोएस्ट फर्टिलिटी। अब आपने वर्ल्ड से शुरू किया, पहले अपनी बात करो, रीजन की बात करो, फिर वर्ल्ड पे जाओ। ठीक है, अगर आपने वर्ल्ड से शुरू किया तो फिर रीजन पे आ जाओ, फिर पाकिस्तान पे आ जाओ। एक इंडक्टिव है, एक डिडक्टिव है। आर्गुमेंटेशन जो है इसके दो तरीके हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव। डिडक्टिव ये है कि वर्ल्ड से शुरू करो, पाकिस्तान पे खत्म करो। इंडक्टिव ये है कि पाकिस्तान से शुरू करो, वर्ल्ड पे खत्म करो। दोनों ठीक है, लेकिन जो साइंटिफिक मेथड है वो इंडक्टिव है। आप स्मॉल से शुरू करें, बिग की तरफ जाए, सिंपल से शुरू करें, कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाए। कब वो दिन आएगा कि आप लोग सही लिखेंगे और मैं developed world after having lowest fertility rate for years, on the other hand developing and improving। हाँ ये ठीक है, आपका इंडक्टिव है। आप रीजन की तरफ आ गई। 10 पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, पाकिस्तान इज अंडर स्पॉटलाइट इन द रीजन ड्यू टू हर माइंड बॉगलिंग हाई फर्टिलिटी रेट। ठीक है, सही है, गुड। बिल्कुल आपने इंडक्टिव डिडक्टिव को फॉलो किया है। Chaudhry Sikandar, in the growing tussles of the globe, controlling population has been one of the most challenging tasks, predominantly in the developing countries like Pakistan, where the limited resources। हाँ ठीक है चौधरी सिकंदर,
सही है आपका, गुड। It took hundreds of years for the world population to grow to 1 billion. खान का नज़ारा, then another 200 years it grow 7-fold. हाँ, ये जो है हुक है, हुक इसको कहते हैं। बिल्कुल आपने अटेंशन मेरा जो है ना ग्रैब किया, क्या बात है जी। ये अटेंशन ग्रैबिंग जो टेक्निक है हुक, ये एग्जामिन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर के पास इतने बंडल होते हैं, वो एक एक चीज़ को नहीं देखता, वो थोड़ा थोड़ा बस हुक को देखता है, कंक्लूजन को देखता है, दरमियान में कोई सेंटेंस पढ़ लेता है, एक एक लफ्ज़ को कोई नहीं पढ़ता। In 2011, the global population reached to 7 billion mark, and today it stands about 8 billion. ठीक है, खान का नज़ारा बिल्कुल सही है। Population of any country play an important role in an important क्या? ईजा खान। ये जो आपने स्पेस छोड़ा है ना इधर, पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट इन इट्स डेवलपमेंट, तो वर्ड्स रिप्रेजेंट योर माइंड। ये आपके माइंड में कोई स्पेस है, कोई वैक्यूम है, या तो आपने खाना नहीं खाया है, आपको भूख लगी है, कोई मसला है इसके पीछे, ठीक है ना। एनी कंट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट क्या रोल इन इट्स डेवलपमेंट, और रोल को आपने पूरा खा लिया। क्रीम रोल खा लेती तो रोल लिख लेती। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग डे आफ्टर डे, डे बाय डे होते, डे आफ्टर डे इतना कॉमन नहीं है। एंड नाउ इट इज द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद इट्स 60% यूथ। हाँ, डेटा शेटा इसमें है, गुड, एक्सेलेंट। और कोई है माई का लाल, कोई मैदान में आ जाए, कोई लिखे। वो जो डेली आप असाइनमेंट करते हैं, आई अप्रिशिएट, लेकिन ये जो प्रेशर के अंदर आपकी लिखाई है ना, दिस विल मोर हेल्प यू। वो तो आराम से बैठ के इधर उधर से पता नहीं क्या क्या कार्रवाई करके उधर डाल लेते हो, लेकिन ये एक एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल है, लाइव है, एक टीचर है, उसके आंख की लगी हुई है, साथ चश्मे भी लगाए हैं, 4 आंखों से आपको देख रहा है। ये रियल आपका परफॉर्मेंस है। जो लोग इस प्रेशर को फेस करें, देन दे विल बिकम great writers. So most of you, they have touched the topic. You can start like this, that there are 3 types of resources: human resources, natural resources and financial resources. एग्जामिनर जब इसको देखते हैं ना, कहते हैं यार ये बंदा बड़ा सिस्टमेटिक है, बड़ा इसने सही लिखा है। नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड human resources. Human is a rational, social and talking animal. Human has the capacity to utilize all other resources productively. ये किसका है? ईजा खान, ठीक है। Abdul Latif, population is the group of individuals of a species living in some area. Population needs resources such as food. Okay. Educating the masses, especially women, making one child policy. अब पाकिस्तान के लिए जो है आप वन चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको रिकमेंड नहीं कर सकते। हमारा कल्चर जो है वो वन चाइल्ड पॉलिसी के उसमें नहीं है। मतलब कोई जो है ना डूएबल, जिसको कहते हैं डूएबल, प्रेगमेटिक, प्रैक्टिकेबल, अपने सजेशन जो देने हैं वो भी प्रैक्टिकेबल देने हैं, डूएबल, कि वो हो भी जाए। ये भी नहीं कि हवाई आप तीर चलाते हैं। So there are 3 types of resources: natural resources, financial resources and human resources. ये आपने स्टार्ट ले लिया। Human resources are required to exploit or to utilize natural resources and financial resources productively. Human capital, when used intelligently, can perform miraculous actions. Miracle means मोजेजाना, बड़े बड़े काम कर सकता है। अदरवाइज
the same human being can become burden on the planet. To the surprise of many people, antinatalism is getting popularity in the world. एंटीनेटलिज्म, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एक तो फैमिली प्लानिंग है कि आप उसको प्लान करें, पॉपुलेशन को प्लान करें. एक और जो मूवमेंट है या फिलॉसफी है उसको क्या कहते हैं? एंटीनेटलिज्म. नो मोर बर्थ्स, बस ये बहुत हो गया. तो अगर आप एंटीनेटलिज्म लिखोगे पेपर में तो एग्जामिनर बड़ा इंप्रेस होगा. एग्जामिनर विल बी वेरी impressed. One is management, entrepreneurship, administration, control, planning of population. And another extreme is that is antinatalism. Antinatalism means no more births. मजीद जो है आप बर्थ्स जो है मत न करें. Because human beings plays havoc with nature. So antinatalism is one extreme, while having burgeoning population. Burgeon, huge number of population. Your paragraph is okay, Abdul Latif. सही है. अब आगे जाओ. Now, you have to keep in mind that antinatalism is one extreme and burgeoning population explosion is another extreme. We have to strike a balance. We have to strike a balance. Neither population explosion nor antinatalism. And what is the solution? The solution is sustainable development. Sustainable development. Sustainable development, antinatalism, burgeoning population explosion, natural resources, human resources, financial resources. Now this is technical academic approach to the topic. And then we go to the history. This is introduction. We go in the body paragraph, we go to the history. The history that when human beings were living in jungles and they were part of the lap of nature before the era of industrialization, there was no contamination, there was no global warming at that time. But when industrialization took place, steam engine was invented, transportation, aviation, human population shifting started, scientific development took place. So it became a huge challenge to strike a balance on the planet. Yes, SDG goals. You have to refer to all the SDG goals, sustainable development goals, which is a challenge to human population. So this was general, and then you come to Pakistan. Pakistan is the world. Anybody that I have given you a link today, 10 very concrete points. Very concrete points. You have to memorize those 10 points. Is there anyone who can copy paste the 10 points? The 10 facts about Pakistani population. जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के बारे में 10 पॉइंट्स है वो तो बिल्कुल आपने रट्टा लगाना है उस पर. Start, you have to write very concretely in a very solid way.
तो पाकिस्तान के बारे में जो है हमारे जो 10 पॉइंट्स उस आर्टिकल में है, वेरी इंप्रेसिव, वेरी कॉन्क्रीट. कैन एनीबॉडी कॉपी पेस्ट दोज 10 पॉइंट्स? लेट अस रीड इट टुगेदर so that we can learn it right now. LIRN. LIRN. Learn by learn. LIRN means learn it right now. अभी उसको सीखो. So those 10 points are very concrete and solid points about Pakistan. We have world fifth most populous country, but at the same time our area is not that much, our geography. If we compare Pakistan with Canada, Canada is world's second largest country. This is comparative analysis. Canada is world's second largest country. Thank you Amara Mukhtar for the 10 points, 10 facts. Canada is world's second largest country after Russia. Russia is number 1 largest country. Number 2, Canada. How much is the population of Canada? Just 35 million. 36 million. How much is the population of Pakistan? 220 million. So this is a huge challenge for Pakistan कि इतना छोटा सा एरिया है और इतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है. You can write like this your experiential learning, that if I start my journey from Peshawar and I go to Lahore, I may not see a single space on the GT road. पिशावर से आप लाहौर जाए तो जीटी रोड पे आपको स्पेस नजर नहीं आएगा. एंड देन देयर आर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अर्बनाइजेशन. People are coming from villages to cities. It was previously 70-30% the balance. 70% people were living in the villages, 30% people were living in the cities. Now it is almost 50-50%, or even opposite, 70% in cities and 30% in villages. So urban sprawl, urbanization. People, they are leaving villages and they are coming to cities, and then we have huge unplanned cities. Town planning and urban management is a huge challenge. अब उस वक्त जब मैं CSS करता था तो ये सब्जेक्ट नहीं था, अर्बन मैनेजमेंट एंड टाउन प्लानिंग. लेकिन मेरा ये स्टाइल है कि भाई मैं कहीं सी चीज़ पकड़ के उसको डाल लेता हूँ. तो ये बड़ा खूबसूरत एक सेंटेंस बन जाता है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट. ये क्या है? ये CSS का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है. लेकिन वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मेरे लिए एक खूबसूरत सेंटेंस बन जाता है. देयर इज लैक ऑफ टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट. ये जो है एक इसके साथ तो रिलेटेड फैक्टर है. सो व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम पेशावर टू लाहौर ऑन GT रोड, देयर आर नो एम्प्टी स्पेसेस. Agriculture land has been absorbed by the sprawl of colonies and population centers and markets and residential colonies and stuff like that. So it is alarming. 10 top facts about overpopulation in Pakistan. The population is large, but the country is small. Anybody can tell me how much is Pakistan? The area of Pakistan. यह जो है पाकिस्तान का एरिया दे दे और पाकिस्तान का पॉपुलेशन दे दे. एग्जामिनर इज सो हैप्पी. एग्जामिनर बहुत पसंद करता है फैक्ट्स एंड फिगर्स को.
और ये जो रूटीन के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं 220 मिलियन, और जी ये हमारा जीडीपी का ये ग्रोथ है, हमारा जो है इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, यूथ का पॉपुलेशन में परसेंटेज इतना है. सो दिस होल थिंग इज important. The population of Pakistan is the fifth highest in the world, but it only makes up 2.59% of the These are very important facts. These 10 facts are highly essential so that you can present your answer to the examiner in a very consolidated format. 0.59% of the Earth's surface. Compared to other countries with high populations, Pakistan takes up the smallest amount of space. This means that Pakistan is dealing with more consequences than other highly populated nations because of its lack of space. अब ये 220 मिलियन ले जाओ कनाडा, वो किसी कोने खतरे में गायब हो जाएंगे क्योंकि कनाडा इतना बड़ा है. Anybody can tell me for my curiosity, population of Russia, रशिया की कितनी पॉपुलेशन है? Because Russia is the largest country. ये भी आपके लिए बड़ा जबरदस्त फैक्ट एंड फिगर है कि रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री. डेफिनेटली इट्स पॉपुलेशन इज लेस देन पाकिस्तान, क्योंकि ये तो टॉप में है नहीं रशिया. इट इज अ न्यूक्लियर पावर, इट इज V2 पावर, इट इज सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर. अब रशिया का पॉपुलेशन देखो कितना होगा, बहुत कम है, 144 मिलियन. ओके, 144 मिलियन है. रशिया को देखो, जेंट द लार्जेस्ट कंट्री. और पाकिस्तान जो है, ये जरा देखो पाकिस्तान एरिया वाइज कितना है. गूगल में एरिया वाइज पाकिस्तान का क्या नंबर है? 45th है कि क्या है? ये देखो कि एरिया वाइज दुनिया में पाकिस्तान का नंबर किधर है. पॉपुलेशन वाइज तो 5th है, एरिया वाइज पाकिस्तान का क्या नंबर है ये गूगल में लिखो जरा. तो रशिया लार्जेस्ट कंट्री है, पॉपुलेशन क्या है? 144. पाकिस्तान इतना स्मॉल कंट्री है, पॉपुलेशन क्या है? 220 मिलियन. तो ये लॉजिकल है, मतलब ये माइंड इसको देखते कि यार ये क्या चक्कर है, हमारे पास जमीन नहीं है और लोग इतने ज्यादा है. द पॉपुलेशन में डबल इन 30 years. The United Nations reported that Pakistan's population will rise up to 400 million by 2050. 33rd largest by area. Thank you. तो 33rd largest by area हो गया. 2050 में पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी? 400 मिलियन. अमेरिका का आबादी कितना है? अमेरिका की पॉपुलेशन इज दैट इज around 300 million. United States of America, world superpower, G7 developed country, आबादी कितनी है? 300. हमारी आबादी कितनी होगी? 400 मिलियन. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आ गया. तो ये जो 10 फैक्ट्स है, these are highly essential. And you have to write like this as you people started writing. I am so happy that you people started writing academically. Academically writing में क्या होता है? Facts and figures, evidence based. So ये जो 10 facts है, please write these, remember these facts and figures by, word by word in your mind, so that you can present population in a proper way. When we discuss population in the region, we discuss the 10 facts. We did not discuss, but I just told you to read it. And then we come to the region. The problem is that Pakistan is in not only itself, it is a very populous country, but our region is also populous. Our one neighbor is number 1 in the world, China. And our second neighbor, another neighbor, India, is number 2 in the world. And number 5 is Pakistan.
1 China, number 2 India, number 3 is I think USA. ये जरा देखो पॉपुलेशन वाइज लिस्ट भाई दुनिया का क्या है. 1 China, 2 India, 3 USA, 4 I think is Indonesia, number 5 is Pakistan, number 6 is Brazil. So Asia is the most populous region, but South Asia and our neighboring China, that is also the most populous country. Now how China is dealing with its population? 1 child policy, 2 children policy. Pakistan cannot go for 1 child policy, but at least we should start planning our population. Family planning does not mean that you stop having children, but there should be gap. बायोलॉजिकली देखा जाए तो एक लड़की की शादी जो है वो हो जाए 20 साल में करे, 15 साल में भी हो जाती है. तो 20 साल में उसकी शादी हो गई, 45 साल तक तो वो बच्चे दे सकती है. तो 20 और 45 में हर साल आपका बायोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट होता है. 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी, तो कितने बच्चे हो गए? 20 साल में उसकी शादी हो गई या जो भी है, तो 20 और 45 ये तो तबाही है. तो मतलब है कि नेचर जो है वो आपको कहता है कि यार प्लानिंग करो. अगर बायोलॉजी पे चले गए तो फिर तो बच्चे बच्चे. It means that this is a natural thing that you have to plan your population. Otherwise, biologically, you can have a baby every year. Though then there is breastfeeding and other factors, but you cannot let it in the natural way. So planning, that is natural, that is required, that you must do. Now then we have our belief system, that is also one of the societal factor. Fatalism, predetermination. You have to write these things in the paper. That people they are predetermined. Predetermination, fatalism, बस जी तकदीर में लिखा है, जो होगा चला जाएगा. अल्लाह जो है वो रिज़्क़ देने वाला है, वो बस उनको जो है ना रिज़्क़ देगा, बस मैंने तो पैदा करना है, आगे उसने जो है ना पालना है. तो ये जो बिलीफ सिस्टम है और सोसाइटल फैक्टर, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड. वी हैव टू सी दैट ह्यूमन बीइंग हैज मैनेजरियल रोल, एंटरप्रेन्योरशिप रोल. We have to manage everything, including population. We are not like animals, like dogs, कि हर कुत्ती की बिच के पीछे जो है ना 50-50 बच्चे पीछे जो है ना वो जा रहे होंगे. अब इंसान में और बाकी जानवर में फर्क तो होना चाहिए. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग किस चीज को कहते हैं? फैमिली प्लानिंग का क्या मतलब है? प्लानिंग मीन्स दैट यू आर रैशनल. रैशनली आप चीजों को करते हैं. आप जो है ना एम ही इंस्टिंक्ट पे, जिबिल्लत पे तो नहीं चलते, फिर आप इंसान कैसे हो गए? सो दिस पॉपुलेशन प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, दैट इज पार्ट ऑफ योर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू कैन नॉट ब्रिंग सो मेनी चिल्ड्रन टू दिस वर्ल्ड without proper education, without proper balanced diet, without giving them proper space. अच्छा, मुसीबत यह है कि जो गरीब बंदा होता है वो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करता है. जो मालदार होता है उसके बच्चे कम होते हैं. मतलब ऐसे विशेष साइकिल. जो मालदार है, जिसके पास पैसा है, वो तो 15-15, 20-20 भी पाल सकता है, लेकिन वो नहीं पैदा करता. जो गरीब होता है उसका कोई और काम नहीं है. सो वी हैव टू सी ऑल दीज फैक्टर्स एंड देन पॉपुलेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. Tomorrow we will be finishing our global issues, and population is a global issue, but it is also a Pakistani issue. That's why we have included this Pakistan, region and globe. If you have any quick questions, so please ask.
If there is any important question, so then you can ask in safe too. All the best. Take care. Thank you.